نہ جانے کیا واسطہ ہے تم سے، ہزاروں اپنے ہیں مگر یاد تم آتے ہو۔ السلام علیکم گائز، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے سے ہوں گے۔ آپ سن رہے ہیں رضیہ سلطانہ کی آواز میں منم ملک کا لکھا ہوا خوبصورت ناول نمکین پانیوں کا سفر۔ آج اس ناول کی لیٹسٹ ایپیسوڈ 14 پارٹ 29 پیش کیا جا رہا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول آڈیو کی صورت میں بہت پسند آ رہا ہوگا۔ گائز، ناول سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ہمبلی ریکویسٹ کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اسے شیئر کرنا تو بالکل مت بھولیے گا۔ نیچے دیے گئے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیا کریں تاکہ میرے آنے والی تمام لیٹسٹ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ میرے چینل کی حوصلہ افزائی ہوتی رہے اور میں آپ کے لیے اچھی اچھی تحریریں آڈیو کی صورت میں پیش کرتی رہوں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں منم ملک کا لکھا ہوا خوبصورت ناول نمکین پانیوں کا سفر، آڈیو بائے رضیہ سلطانہ۔ سیمی ایک بنجر سی زمین پر پڑی شگافی دراروں کی مانند، بدنما ٹھہرے ہوئے پانیوں جیسی، کائی زدہ ہواؤں کے دیس میں ریت سی، ذرہ ذرہ ایک اچھا وقت جو گزر گیا ہو، ایک پاکیزہ عطر جو اڑ چکی ہو، اترے ڈھکن خالی شیشے کی طرح ارزاں ارزاں جسے سنبھال کر نہیں رکھا جاتا، پھینک دیا جاتا ہے اور اسے بھی سنبھال کر نہیں رکھا جا رہا تھا، ٹھوکر مار کر دور پھینک دیا تھا۔ وہ زخم تھی، ایک گھاؤ سے خون رستا تھا، ایک ایک انگ اعضاء سے ٹھیس اٹھ رہی تھی، خشکی کے سبب ہونٹ پھٹ رہے تھے۔ وہ ایک اندھیرے کوٹری میں بندھی ہوئی تھی، ٹھنڈی دیوار اور فرش کے سہارے نیم درار وہ خود کو سرد خانے کی تلاش جیسا تصور کر رہی تھی۔ کتنی بار سر گھما کر اس نے روشن دان کو امید بھری نظروں سے دیکھنے کی کوشش کی تھی، کوئی امید کی کرن، کوئی آس کی ٹمٹماتی لو، مگر اس کے حصے میں کچھ نہیں آیا تھا۔ قسمت کی گرفت بہت بری پڑی تھی اس پر۔ مختصر سے وقت میں اس نے لوگوں کو اتنی تیزی سے بدلتے ہوئے دیکھا تھا کہ کچھ بھی اس کے لیے حیرت انگیز نہیں رہ گیا تھا۔ دنیا کی کوئی چیز اسے حیران نہیں کر سکتی تھی، کوئی واقعہ اسے اب دکھی نہ کر پاتا۔ وہ پہلے کی طرح شاید کسی کے غم کو لے کر آنکھیں نم نہ کرتی، اب وہ کبھی کسی اور کے لیے پہروں کرہتی نہیں رہے گی، وہ اب کسی اور کے لیے قلم سیاہ نہیں کرے گی، اپنی راتیں برباد نہیں کرے گی۔ مگر کیا اس کی راتیں آباد رہنے والی تھی؟ وہ جو تخلیقی صلاحیتوں سے مالا مال تھی، اللہ نے اسے اس درجے پر نوازا تھا کہ کوئی یقین نہ کر پاتا کہ وہ ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے والی عام سی لڑکی ہے، جس نے کوئی قابل ذکر تعلیم بھی نہیں پائی اور جسے اس کے ارد گرد کے لوگ سیمی کہتے ہیں۔ وہ لفظوں کی دنیا کی ملکہ ہے، لوگ اسے سراہتے ہیں اور اس کے لیے آج کے دور میں بھی دور دراز سے خط لکھتے ہیں۔ وہ ایک سیلیبریٹی تھی، لفظوں کی جادوگرنی، قلم کی کھلاری۔ وہ لفظوں پر حکومت کرتی تھی اور حرفوں کو اپنی حکمرانی اتنی پیاری تھی کہ وہ سر جھکا کر اس کے قلم سے کرتاس پر بکھرنے کے لیے بےتاب رہتے تھے، لوگوں پر فسو طاری ہو جاتا تھا۔ آج وہ خود ایک روایتی سی داستان کا کردار ہو گئی تھی، اس کی زندگی ایک گھسے پٹے انجام کا شکار ہو گئی تھی۔ اس نے کبھی اپنی تعریف نہیں کی تھی، وہ انٹرویو دینے سے ہمیشہ انکار کر دیتی تھی۔ فلمی سفر کی اپنی کامیابیاں گنوانا اسے پسند نہیں رہا تھا، مثل بہشت کی سیمی جو مغرور نہیں تھی، پھر بھی وہ ایسی سزا کی زد میں تھی جسے اس سے کوئی غرور سرزد ہوا ہو۔ وہ تو زمین پر کھینچی لکیر کی مانند تھی، سیدھی اور عاجز۔ اس کی انگلیوں کی پوروں میں لفظوں کے نور دفن تھے، تو شاید وہ ان کا شکریہ ادا کرنا بھول گئی ہوگی۔ شکر تو ہر چیز کو بڑھاتا ہے، ناقدری گھٹا دیتی ہے، مگر اس کا حساب تو اللہ کے پاس ہے۔ پھر بندوں نے اس سے کون سا ہر جانا وصول کیا، کیوں اسے خطا کار بنا دیا؟ زمین سرد تھی اور فضا سرد ترین۔ زمین پر رینگتا کوئی چیونٹا سیمی کے بدن کو زور سے کاٹ گیا تھا۔ سیمی نے اس درد کو محسوس کیا اور اسے رونا آنے لگا۔ اس درد پر نہیں، وہ تو ہاتھ مار کر اس نے جھٹکا تک نہیں تھا، اسے خود پر ترس آ رہا تھا اور یہ ترس اسے رلا رہا تھا۔ اسے کوڑا کرکٹ کہا گیا تھا اور کوڑے پر تو چیونٹے ہی ملتے ہیں۔ کرم الہی،
اس کے لبوں سے ایک آہ نکل گئی۔ رات دوسرے پہر میں داخل ہو رہی تھی اور وہ اس کوٹری میں بندی ہوئی تھی، سرد ترین رات میں۔ ننگی زمین پر صبح کا سورج اسے اس کے گھر سے، اس کے اپنوں سے، اس کے سپنوں سے دور لے کر پھینکنے والا تھا۔ کاش اللہ سے موت کی خواہش کی جاتی تو اللہ اپنے پاس بلا لیتا۔ حرام موت سے تو نفرت تھی۔ یا اللہ حلال موت عطا کر دے۔ اس کی آنکھوں سے ٹھنڈے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ اس کی قسمت کا فیصلہ لمحوں میں ہو گیا تھا، کیونکہ وہ سیمی تھی، سیمی حاکم حسین، حاکم گھرانے کی آن بان شان۔ اس کا پہلا قصور یہ تھا کہ وہ ایک لڑکی تھی، ناقابل اعتبار، ناقابل معافی، ناقابل تلافی۔ اور دوسرا قصور تو آپ جانتے ہیں۔ حویلی پر رات اپنے پہلے پہر پر سوار تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر وہ تمام کھانے کے سجے ہوئے تھے جو ان کے اہتمام میں بنوائے گئے تھے۔ حویلی کے مکین اپنی جگہ سنبھال چکے تھے، مگر کسی کا ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھا تھا۔ شمائلہ نہیں آئے گی کھانے پر؟ پھپھو نے گہری سوچ میں ڈوبے شمریز سے استفسار کیا تھا۔ وہ اپنے خیالوں سے چونکا، نفی میں سر ہلایا۔ نہیں پھپھو، اسے الگ سے کہنا پڑے گا۔ ندرت کو شمریز کا سوگ بہت ناگوار گزرا تھا۔ کوفت سے بولی، آپ لوگ شروع کریں۔ شمریز نے نظر انداز کر کے احمر کو دیکھا۔ شمریز، میں نے تمہیں کہا ہے شمائلہ کو بلا کر لاؤ۔ انہیں مزید تاؤ آ گیا۔ وہ نہیں آئے گی۔ کیوں؟ بھوکا سوئے گی؟ اگر سوئی تو؟ شمریز زیر لب بڑبڑایا۔ ایک تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ مزید کتنے دن سب منہ لٹکائے رکھیں گے۔ وہ بپھڑ گئی۔ مجھے اپنے گھر میں کسی قسم کا کوئی ڈرامہ نہیں چاہیے۔ جو فلم آج بڑے پردے پر ہوئی ہے وہ زندگی بھر کے لیے کافی ہے۔ امی پلیز، شمریز نے بے بسی سے انہیں پکارا تھا۔ جو نہیں آ رہا اسے اتنی سی مرضی کرنے دیں۔ کم از کم باقیوں کا موڈ بہت مت خراب کریں۔ پہلے ہی سر میں درد ہے۔ جو تم لوگوں کو مرضی کرنے دی ہے اس کا خمیازہ آج ہم بھگتتے بھگتتے بچے ہیں۔ نہ تم لوگوں کو شروع سے سر پہ چڑھایا ہوتا، نہ یہ دن دیکھنا پڑتا۔ وہ طنز کے تیر چلا رہی تھی۔ امی، میں اٹھ کر چلا جاؤں؟ شمریز نے مدھم سی آواز میں پوچھا۔ ندرت نے بمشکل خود کو کچھ کہنے سے باز رکھا۔ شمریز، بیٹھو تم، بابا نے اسے نرمی سے ٹوکا۔ وہ سر تھام کر بیٹھا رہا۔ بیگم، آج پہلے ہی بہت چیخنا چلانا ہوا ہے۔ آپ کو ان کا لٹکا منہ نظر آ رہا ہے۔ در حقیقت آپ خود جھنجھلائی ہوئی ہیں، تو میں اور کیا کروں بہادر صاحب؟ میں آپ کو ہمیشہ کہتی آئی کہ ان لوگوں سے فاصلہ رکھیں۔ کیا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ایسے ماں باپ کی اولاد کس طرح کی نکلتی ہے؟ یہ کسی کے ماتھے پر تو نہیں لکھا ہوتا۔ وہ رسانیت سے بولے، بے شک، مگر خدا نے آپ کو ضرور آنکھیں اور عقل دی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وقت سے پہلے ان کی اصلیت آپ پر کھل گئی، ورنہ آپ تو چلے تھے بارات اٹھانے۔ تلخی کچھ حد سے سوا ہو گئی تھی۔ پھپھو ان کی بات پر چونک پڑی۔ بہادر صاحب نے بھی آنکھوں سے تنبیہ کی۔ کیا کہہ رہی ہو ندرت؟ کیا اب بھی کوئی اور بات مجھ سے چھپی رہ گئی ہے؟ انہوں نے بھاوج کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ شمریز کا اصرار اسی طرح ہاتھوں میں گرا ہوا تھا۔ نہیں آپا، سوری، میں زیادہ بول گئی۔ وہ نظریں چرا کر ڈھیلی پڑ گئی۔ کوئی بات نہیں ہے، اب اجازت ہو تو بات ختم کریں۔ ان کے سوال نے انہیں مزید شرمندہ کر دیا تھا۔ اوکے، میں یہاں بہت اچھے موڈ کے ساتھ آئی تھی اور بات ایسی تھی کہ میرا مزاج خوشگوار رہنا لازمی تھا، مگر دھیان میں یہ سارا کچھ ایک سانس لے کر انہوں نے اس موضوع کو دہرانا غیر ضروری سمجھا۔ جو ہوا اسے فراموش کر دو۔ شمائلہ بیٹی کو وقت دو، اسے آرام کرنے دو، اسے بہت زیادہ شوق پہنچا ہے۔ صبح میں اس سے خود بات کروں گی، ابھی اس کا خود کو سنبھالنا بہتر ہے۔ ان کے سمجھداری پر انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جی آپا۔ اور احمر، میں دیکھ رہی ہوں تم چپ ہو، ایک لفظ تم شمائلہ کی حمایت میں نہیں بولے۔ امی، میں کیا بولتا؟ احمر ماں کو اپنی سمت دیکھتا پا کر گڑبڑا گیا۔ کچھ بھی نہیں، میں تمہیں یہ کہہ رہی ہوں کہ اسے کل آج کے واقعے کا شائبہ تک نہیں ملنا چاہیے۔ اس سے بالکل نارمل طریقے سے بات کرنا اور اسے اپنی باتوں سے حوصلہ دینا۔ وہ گم سم نہیں لگنی چاہیے مجھے۔ جی امی، احمد نے رسمن کہا، حالانکہ وہ کہنا چاہتا تھا وہ ان سے بات کب کرتی ہے۔ چلو شمریز بچے، بسم اللہ کرو، یہ ڈش پاس کرو، میں اپنے بیٹے کو خود کھانا کھلاتی ہوں۔ وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بولی تھی۔ شمریز حرکت میں آ گیا۔ کچھ لمحوں میں ہی وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے درمیان کھانا کھا رہے تھے۔
नुदरत को इस तनाव में वाजिया कमी महसूस हुई। वो अपनी इकलौती नंद की ममनून हुई जो इस मुश्किल वक्त में उनके घर के लिए का नरम गरम झोंका साबित हुई। एक शुक्रगुजार वो अल्लाह की थी जिन्होंने बगैर किसी तगो दो के एक बड़ी मुश्किल आसान कर दी थी। कुछ करने से पहले ही शमरेज उस खानदान से मुकम्मल तौर पर कट गया था। रात के दूसरे पहर में आसमान पर आधा चांद चमक रहा था। उसकी शक्ल जर्द सी थी, चांद ग्रहण जैसी, और वो बहुत दूर नजर आ रहा था। पूरे माहौल पर हू का आलम तारी था, अंधेरा और एक पुरहोल सन्नाटा। ऐसे में सिमी की कोठरी का दरवाजा इतनी एहतियात से खोला गया था कि हल्की सी चिड़चिड़ाहट भी पैदा ना हो सकी। अब्बा अपना फैसला सुनाने के बाद घर नहीं आए थे। वो जानवरों के बारे में या ओताक पर कहीं भी सो गए थे, मगर उन्होंने अपना कहा पूरा किया था। वो सिमी के साथ एक छत तले नहीं रह सकते थे। सिमी की आंखें नीमवा थी। दोनों हाथों ने माचिस रगड़ कर चिराग जलाया तो गहरी पीली रोशनी में वो यरकान ज़दा सी लग रही थी। अम्मा ने एक गरम खेस उसे चारों तरफ से उड़ा दिया। उसकी सर्दी से हड्डियां अकड़ी हुई थी। उस खेस की गरमाइश और नरमाहट उसे माँ की गोद जैसी महसूस हो रही थी। अम्मा ने उसके साथ जाग रही थी। माँ वो कैसे सो सकती थी जब उनकी बेटी इस हाल में थी। अब्बा ने कहा था सिमी से किसी को मिलने की इजाजत नहीं, किसी को हमदर्दी जताने की जरूरत नहीं, मगर ये खूनी रिश्ते जरूरत से मावरा होते हैं और माँ को किसकी इजाजत चाहिए होती है, उसे कोई पाबंदी कोई रुकावट नहीं रोक सकती। सिमी, अम्मा उसके करीब जमीन पर बैठ गई थी। उनकी पुकार में इतनी मोहब्बत और इतनी शिद्दत थी कि सिमी से बोझल पलकें उठाई ना गई। तुम्हें दर्द हो रहा होगा सिमी, तुम्हें दुबा देती हूँ। वो उसके बाजू और टांगों पर हाथ रखते हुए बोली थी। सिमी ने फौरन उनके हाथ अपने हाथों में लिए थे। अम्मा, आप ये क्या कर रही हैं? उसकी आंखों से आंसू रसने लगे थे। ये मुझे करना चाहिए अम्मा, ये आपको आराम पहुंचाने की उम्र है और मैंने आपको बहुत दुख पहुंचाया है अम्मा। नहीं सिमी, तुम मेरी बहुत अच्छी बेटी हो, तुम मुझे दुख नहीं पहुंचा सकती। वो उसके हाथ सहलाने लगी थी। अम्मा, आप यहाँ क्यों आई हैं? अब्बा नाराज होंगे। तुम मुजरिम नहीं हो कि मुझे तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे अब्बा की इजाजत दरकार होगी। मुजरिम ही बना दी गई हूँ अम्मा। वो नीचे देखने लगी थी। उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो अपनी माँ को आजुर्दा देख पाती। सिमी, बड़ी बड़ी गलतियां अचानक नहीं हो जाती। मुझसे कहीं भूल चूक हुई होगी, मैं अपनी जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा सकी। वो सिमी के चेहरे को अपने हाथों के प्याले में लेकर दुख से बोल रही थी। ये चेहरा उन्हें कितना प्यारा था। ये जिंदगी हमें हमेशा अपने प्यारों को तकलीफ में देखने की आजमाइश में मुब्तला करती रहती है। सिमी ने माँ को देखा। नहीं माँ, आपसे कोई भूल नहीं हुई। ये मेरा अपना किया धरा है, अपना बोया हुआ मुझे काटना है। मगर दुख तो ये है कि उसका गला रंध गया था। उसकी आंखों के टूटते आंसू अम्मा की हथेलियों पर फिसल रहे थे। दुख इस बात का है कि आप सब भी इस लपेट में आ गए। अब्बा, आप, सानिया, कितनी छोटी है वो, दुनिया का इस मुआशरे का कैसे सामना करेगी? उसे तो हमने कभी खिलखिला कर हंसते बगैर देखा ही नहीं। वो अभी अभी हमारे बारे में सोच रही होगी। वो अभी भी हमारे बारे में सोच रही हो। वो शिकायती निगाहों से सिमी को देखे गई। तुम्हारे बाप ने तुम्हें काले पानियों जैसी सजा सुनाई है, तुम्हारी सारी जिंदगी भेंट चढ़ा दी है। क्या एक बार भी उनका दिल नहीं कांपा होगा? सिमी, वो पुरनम आंखों से सवाल कर रही थी। सिमी के चेहरे पर जख्मी सी मुस्कुराहट आ गई थी। मैं शायद इस सजा की हकदार हूँ अम्मा, लेकिन आप और सानिया नहीं हैं। और सिमी कहते कहते खामोश हो गई थी। अम्मा जैसे उसकी खामोशी तक पढ़ सकती थी। मुजफ्फर का सोच रही हो ना अम्मा? और मेरे बारे में क्या सोचेगा वो? सिमी के दिल पर हाथ पड़ा था। वो नए सिरे से तड़पती अजियत से अजियत तर हुई थी। मुजफ्फर तुम्हें समझेगा सिमी। अम्मा ने झूठी तसल्ली ना जाने सिमी को दी थी या खुद को। अम्मा, जिस भाई की बहन जमाने में बदनाम ठहराई जाए, उनकी जिंदगी क्या रहती होगी? अम्मा, वो तो परदेश में है। सिमी कई सानिए कुछ बोलने के काबिल नहीं रही थी। वो दोनों कितनी ही देर रोती रही। इसलिए कह रही हूँ सिमी, मैंने तुम्हें समझाया ही नहीं कि दूसरों की इज्जत करना जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी इज्जत करना छोड़ दें। काश तुमने शुमाइला की बात ना मानी होती।
अम्मा, मुझे लगता ही नहीं था बज़ाहिर इतनी छोटी नजर आती बात इतनी बड़ी भी हो सकती है कि हम सब की जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। सिमी के पास पछतावे के लिए बस एक लम्हा रह गया था। वो उसे कितना भी जला लेती, वो भस्म नहीं हो सकता था। और सिमी, तुम उनके घर गई थी? क्यों सिमी? क्या वो भी? नहीं अम्मा, वो झूठ नहीं है। सिमी ने अपने जुर्म का एतराफ किया। आज से अलग रहा था कि जिस एतमाद पर लापरवाही का मुजाहिरा करती रही है, वो जब छिन जाए तो टूट जाए तो क्या हशर होता है। तुम्हें शुमाइला ने भेजा था? मैं खुद गई थी। एक दूसरे जुर्म का एतराफ। उसने अम्मा की नजरों का सामना नहीं किया। उसकी माँ उसका साथ देती रही थी। वो ऐसी बेटी थी जो इस काबिल थी ही नहीं। तुम तो मेरी इतनी मुहतात और समझदार बची रही हो। मैं हमेशा तुम पर फख्र करती रही हूँ। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो सिमी? तुम मुझे बगैर बताए, बगैर पूछे इतना बड़ा कदम कैसे उठा गई? उन्हें दिली सदमा पहुंचा था। सिमी उन्हें एक बार तो कहकर देखती, वो उसे पहले कदम पर ही रोक देती। वो हालात को इस नहज पर कभी ना पहुंचने देती। मैंने नाफरमानी की है ना, इसी की सजा मुझे मिल रही है अम्मा। इस सब की कसूरवार मैं खुद हूँ। तुम्हारा कल निकाह हो रहा है सिमी। हाँ अम्मा, मेरा निकाह। वो रोते रोते हंस पड़ी। अम्मा का दिल फटने लगा। ये ऐसी हंसी थी जो नचोरी जाती तो बरसात हो जाती। करम इलाही, जो उम्र में तुमसे 3 गुना बड़ा है सिमी। उन्होंने उसे इत्तला दी, बाखबर किया। देखा है उसे मैंने। मुझे उसकी पीली जर्द आंखों से खौफ आता था, कराहत का एहसास जागता था। अब तो मैं खुद ऐसी हो गई हूँ अम्मा। वो और मैं एक कश्ती के सवार। सिमी के चेहरे पर अपना मजाक उड़ाते अनगिनत आसार थे। अम्मा ने उसे पकड़कर झंझोरा। ऐसी बातें मत करो सिमी, मुझे और दुख मत पहुंचाओ। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने उसकी आंखों में देखकर कहा था। सिमी को अपनी माँ की बहादुरी पर फख्र हुआ। वो अब भी उसके लिए सब कुछ करने पर तैयार थी, अब जबकि राख भी ठंडी हो चुकी थी। मेरे लिए कुछ मत करें अम्मा, आप खुद को मत थकाएं। सिमी ने उनसे इल्तिजा की। तुम मेरी जगह नहीं हो सिमी। तुम्हें लगता है बेटियों को छोड़ देना आसान है? मेरा बाप मेरे दुख को गले लगाए मर गया था सिमी, हालांकि मैं जिंदा थी। अपने खानदान में तुम्हें इस जहन्नुम में जाते देखकर मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगी? उन्होंने सख्त लहजे में सिमी से सवाल किया था। सिमी का जब्त जवाब दे गया। सब्र का दामन छूट गया था। मुझे बचा ले अम्मा, मुझे अपने पास रख लें। मुझे इसी अंधेरी कोठरी में कैद कर लें। मुझे खाना मत दें, मुझे पानी मत दें, लेकिन मैं इस 4 दीवारी से बाहर नहीं निकलना चाहती अम्मा, प्लीज। वो छोटी बच्ची की तरह दोनों बाहें उनके गले में डाले बिलक बिलक कर रो रही थी। अम्मा का दिल बाहर आने को बेताब था। मेरी बच्ची। वो खुद को कुर्ब की इंतहा पर थी। मैं आपके लिए वहां गई थी अम्मा। मेरी जिंदगी पर आपके गहरे असरात हैं। मैंने कभी आपको दिल से हंसते नहीं देखा। मैंने कभी नहीं देखा अब्बा ने आप पर एक प्यार भरी निगाह डाली हो। मैं वहां देखने गई थी कि जिन खुश नसीब लोगों के दामन मोहब्बत के रंगीन फूलों से भरे होते हैं, उनके लबों पर आती मुस्कुराहट किस रंग की होती है। मैं देखना चाहती थी कि जब एक शोहर अपनी बीवी पर मेहरबान नजर आता है तो उसकी उम्र कितने साल लंबी हो जाती है। जिस औरत पर एहसास निशावर किया जाता है, उसके चेहरे पर कितनी मलाहत आ जाती है। मैं देखना चाहती थी अम्मा। सिमी, वो शिद्दत से उसे देखे गई। हमने आपको अपने बचपन में बूढ़ा होता देखा है। आपकी बातों और आपके चेहरे से मेरी जिंदगी में जितनी बार भी आपकी जवानी की खूबसूरती छिप दिखलाकर गायब हुई है, वो मुझे उंगलियों पर याद है। मैं अपनी एक हसरत अपनी आंखों के सामने जीती जागती देखना चाहती थी। मैं एक नजर अपने उस रिश्ते को देखना चाहती थी जो हमारी जिंदगियों में कहीं नहीं। सिमी, ये तुम बोल रही हो? उनकी आंखें तहय्युर से फैलती जा रही थी। आज सिमी में उन्हें ताजवर का वो रूप नजर आ रहा था जो उन्होंने बेदर्दी से अपने अंदर दफन कर दिया था। वो कब उनकी बेटी में मुंतकिल हो गया था? क्या उसके होश संभालने पर या उसके कोख में आने पर ही? अम्मा, मेरी गलती थी। मैं भूल गई थी कि वक्त अपना हिसाब रखता है, चोरी लम्हों की हो या घंटे की, ये चोर का हाथ जरूर पकड़ता है। मैं वही मिली थी उससे, बल्कि जुनूनी अंदाज में बोलती सिमी की जुबान को ब्रेक लगी थी। माँ के गले लगे लगे उसका हाथ उनकी गर्दन से जरा सा ऊपर सर के करीब एक घड़े पर जा टकराया था।
यहाँ पर अम्मा के बाल नहीं थे, शुरू से ही नहीं थे। यहाँ एक सफेद निशान था, मगर वो घड़ा गहरा काला था। ये सिमी के अंदर दुख का एक नया मुंह खुल गया। मैं तो इससे मिली भी नहीं थी अम्मा, बस एक नजर उसकी मुझ पर पड़ी थी और मैंने अपनी नजर समेट ली। मैं जल्दबाजी में और बौखलाहट में अपनी चादर ना उठा सकी। लेकिन अम्मा, उसने किस चीज का गुस्सा उतारा मुझ पर? खिजर ने क्यों इल्जाम लगाया मुझ पर? मेरी उससे क्या दुश्मनी थी अम्मा? वो माँ से सवाल करती अपनी बदकिस्मती पर फूट फूट कर रो रही थी, ये देखे बगैर कि माँ को उसके पहले सवाल पर ही साकत हो चुकी है। पहले सवाल पर, दूसरे सवाल के पहले लफ्ज पर उन्हें लगा वो कुछ गलत सुन बैठी है। क्या कहा सिमी तुमने? क्या नाम लिया? अम्मा, सिमी चुंदियाई आंखों से माँ के लहजे पर सीधी हुई। तुमने अभी अभी किसका नाम लिया है? मैंने खिजर, खिजर दस्तगीर। इस नाम में जाने क्या था? और माँ गूंग रह गई थी, एकदम बेहिस्सो हरकत, एकदम पत्थर, और एकदम शल रह गई थी अम्मा जान, बिल्कुल गुमसुम और सकते की कैफियत में। खिजर, तुमने क्या नाम लिया है अभी? उनकी आंखों में कुछ था, चेहरे पर कोई तासुर। कहाँ वो उसे एक मिनट इस घर में नहीं रोकना चाहती थी, और अब उन्हें इस लड़की के नाम में दिलचस्पी थी। अम्मा जान, मैंने कहा ना, प्लीज जिद मत कीजिए, मैं सिमी को ऐसी हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहता। खिजर ने अपना लहजा मजीद दरख्वास्ताना कहा ताकि उन पर असर कर सके। सिमी? उनके हाथों से खिजर का बैग धप से जमीन पर गिरा। वो सिमी कैसे हो सकती है? वो खुद कलामी कर रही थी, एकदम शाल सी होकर। ये तुमने क्या कर दिया खिजर? खिजर को उनके चेहरे पर कुछ दुखी से आसार नजर आए। अम्मा जान, अम्मा जान, आप उसे जानती हैं? वो बेताबी से बोला। दुआ करो जिस सिमी को मैं जानती हूँ ये वो सिमी ना हो। उनका दिल शिद्दत से चाहा था। बात जितनी बड़ी तुम्हें लग रही है, बात इससे कहीं ज्यादा संगीन है। वो मगमूम नजर आने लगी थी, अफसुर्दा और नाखुश सी, बेहद थकी थकी। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो लड़की सचमुच बहुत अच्छी है, उसका कोई कसूर नहीं। वो जितनी अच्छी और बेकसूर है, उसे तुम्हारे या किसी और के कहने या ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अच्छा होने के लिए किसी गवाही की जरूरत नहीं। उन्होंने शिकायती निगाहें अपने प्यारे बेटे पर डाली और धीरे से बेड पर बैठ गई। खिजर से उन्हें कभी कोई शिकवा नहीं हुआ था, उससे नाराज नहीं होती थी, मगर आज खिजर को उनका रवैया चौंका गया था। अम्मा जान, तो मैं? वो उनके घुटनों पर हाथ रखते हुए नीचे बैठा। कहीं नहीं जा रहे हो तुम खिजर, जो होगा अब तुम्हारे सामने होगा। मैं हमेशा तुम्हारे हवाले से डर का शिकार रही हूँ, मगर इस दफा तुम्हें इन हालात का सामना करना होगा। वो दिल गिरफ्तगी से कह रही थी। उनके दिल से एक ही दुआ निकल रही थी कि जैसा वो समझ रही हैं वैसा कुछ ना हो। लेकिन आप सिमी को कैसे जानती हैं? वो एक बार फिर उलझ कर बोला था, हालांकि उनकी जिद के खत्म होने पर उसे कुछ हौसला हुआ था। ये सवाल ज्यादा जरूरी है खिजर? नहीं, ओके, लेकिन हम लोग उसकी मदद तो कर सकते हैं। जबकि आप जानती हैं उसे, तो हम उन्हें चलकर समझा सकते हैं। हमारी बात कोई नहीं सुनेगा खिजर। वो मायूसी से नफी में सर हिलाने लगी। जरूर सुनेंगे, हम ट्राई तो कर सकते हैं। मैं बताऊंगा उन्हें कि वो गर्म जोशी से तेज तेज बोलने लगा। तुम पर यकीन नहीं किया जाएगा, कभी भी नहीं। मुझ पर उन्होंने नहीं किया, मगर आप साथ होंगी तो और नहीं किया जाएगा। उन्होंने उसकी गलतफहमी दूर की। तुम पर इसलिए यकीन नहीं किया जाएगा कि तुम मेरे बेटे हो। वो सर झुकाकर आंसू पीने लगी। खिजर की उलझन दो चंद हो गई थी। आप मुझे कुछ बताएंगी? आप अजीब बातें कर रही हैं। शुमाइला से राब्ता करो खिजर, उसे कहो उसे हर कीमत पर सिमी को इस मुश्किल से निकालना है। तब तक तुम सब्र रखो। उन्होंने दो टोक अंदाज में खिजर को हुक्म दिया और डूबते दिल के साथ अल्लाह से मदद मांगने के लिए उठी। यही वो वक्त था जब खिजर के मोबाइल पर आती शुमाइला की कॉल उसे गैब भी अमदाद मालूम हुई थी, और खिजर ने शुमाइला को सारी सूरत हाल से आगाह किया था, उसे सिमी की मदद करने को कहा था। गुज़श्ता शाम सूरज ढलने पर जब अब्बा करम इलाही के साथ बैठे थे और वो अपने और सीमे के निकाह की बात कर रहा था, तब ताया सद्दाम इंतहाई गुस्से में हाकिम के पास आए थे। तुमसे जरूरी बात करनी है मुझे। उनसे अपना गुस्सा दबाया नहीं जा रहा था। जी? हाकिम मुतवज्जा होकर उन्हें देखने लगे। यहाँ करम इलाही सोचकर वो तज़बज़ब सा शिकार हो गया। तुम कहो,
उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। मुझे पता चल गया है कि तुम्हारी बेटी के साथ वो लड़का कौन था। उनके लहजे में नफरत बोलने लगी थी। अब्बा का सर झटके से उठा। और तुम सुनोगे तो अपने हाथों से उसका कत्ल करना चाहोगे। उनके लहजे की खोलन बढ़ी। सिमी के वाकये के बाद उनका बस नहीं चल रहा था कि जमीन सीना चीर कर इस शख्स को बाहर निकालें जिन्होंने इसके घर की इज्जत को दागदार कर दिया था। ये वही ताया सद्दाम थे जो माजी में अपने घर की औरतों का जिक्र भी अपने दोस्तों की जुबान पर बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, और आज किस्मत ने ऐसा तमाचा रसीद किया था कि उसकी गूंज उनके कानों के पर्दे चीर कर रख गई थी। कौन है वो? तुम्हारी साली शकीला और दस्तगीर का बेटा, मौलवी हयात का नवासा, और तुम्हारी बीवी का। उन्होंने जानबूझकर एक एक रिश्ते को जड़ से पकड़कर हाकिम के सामने उजागर किया था, जिसे दफन किए जमाने बीते थे। अब्बा के चेहरे पर जैसे खोलता तेल फेंक दिया गया था। वो एक झटके से चारपाई से उठे, कदमों तले जमीन दुबक गई। शकीला और दस्तगीर का बेटा? आप सच सुनकर आ रहे हैं? हाकिम को यकीन नहीं आ रहा था। उसकी आंखें बाहर को उबल आई थी। पता करके आ रहा हूँ, कोई अपनी तरफ से अंदाजे नहीं लगाए। इस खानदान ने बरसों बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा। इस मर्तबा ऐसी जगह चोट पहुंचाई है कि ताया सद्दाम को तैश में अल्फाज नहीं मिले थे जिसका वो इजहार कर पाते, जबकि हाकिम इस इंकशाफ ने उसकी हस्ती को तहोबाला करके रख दिया था। ये उसने अपनी जिंदगी की सबसे संगीन गलती की है। उसे ये नहीं करना चाहिए था कि उनके लहजे में सांप जैसी फनकार ऊद कर आई थी। चेहरा जहर से नीला पड़ने लगा था। ये दिन देखने से पहले अच्छा होता अगर उसी दिन मैंने उसे जान से मार दिया होता। हाकिम की आंखों के भड़कते शोलों में बीते दिनों का वो अक्स लहराने लगा था जब खिजर पहली मर्तबा उनके हाथ लगा, और मैंने सोचा कि वो इस वाकये से सबक सीख चुके होंगे, इसलिए उन्होंने हमेशा उसे मेरी नजरों से दूर रखा। मगर नहीं, वो किसी मौके की ताक में थे, और इसमें तुम्हारी बीवी का भी हाथ है। उसने हमेशा तुम्हारी खिलाफ बढ़ चढ़ कर बोला है और तुम्हारी मर्जी के खिलाफ काम किया है। दुख की बात तो यह है कि उसने सीमी को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया और सीमी ने इनकार नहीं किया। सद्दाम का बुरा हाल हो रहा था, तभी लोग उन पर हंसते थे। उनके किरदार पर उन्हें शुबा रहता था। उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसे वो अपनी मर्दानगी समझते थे। फितरत कभी नहीं बदलती, उनकी भी नहीं बदली थी, मगर ये एक औरत का सवाल था, उनके खानदान की औरत। अब लोग हंसते थे तो वो बुरी तरह तड़प रहे थे, जैसे जान कुनी की तकलीफ से गुजर रहे हों। बहुत गलत किया साहब ने, उसका खमियाजा सबको मिलकर भुगतना पड़ेगा। उन्होंने ये बात बहुत मध्यम लहजे में की थी, शायद खुद से सरगोशी, कोई अहद। उनका दिमाग एक बार फिर से पीछे चला गया था। गुस्सा, नफरत, जज्बाती फैसले, कत्लो गारत नहीं। उन्होंने नफरत में सर हिलाया। उम्र की नदी में बहुत सारा पानी बह गया था, अब सिर्फ बूंदें रह गई थी जो टपकती थी, और इस रेत की मानिंद फिसलते वक्त ने उन्हें एहसास दिलाया था कि वो अपने हर फैसले में गलत ठहरते हैं। वो बहुत पीक पर जाकर सोचने लगते थे, बिल्कुल आखिरी हद पर, इसलिए हमेशा हार जाते थे। आज वो अपनी हार नहीं देखना चाहते थे, किसी सूरत नहीं। आज सूरत हाल उनके सामने बिल्कुल वाज़िया थी। करम इलाही अभी तक उनके सामने बैठा था। उन्हें अपने सामने बिछी बसात नजर आ रही थी, बेटी नहीं। उनके कदमों तले आग दहकने लगी थी, शोले उनके तलवे जलाने लगे थे। माजी में भी यही होता था और तारीख फिर से अपना आप दोहरा रही थी। शकीला सद्दाम की मंगेतर थी और सीमी मोइन की। सद्दाम से शकीला को छीनकर दस्तगीर को दे दिया गया था और अब ऐन वक्त पर फिर से वही दोहराया गया। सीमी को मोइन अमानत ना समझते हुए उन्होंने खिजर को उनकी जड़ों तक पहुंचने का रास्ता दे दिया था। तब भी यही खानदान था, अब भी यही खानदान। तारीख का जबर सबको सहना पड़ता है, मगर अक्लमंद वही होता है जो से अपने दुश्मनों को अपनी बर्बादी पर खाक मिला दे। ये मौका हर किसी को तो नहीं मिलता। ये मौका हाकिम को मिल रहा था क्योंकि मोड़ा उसी के हाथ में था। शकीला, दस्तगीर, खिजर, ताजवर, सीमी, ये सब मिले हुए थे, ये सब एक थे। वो सीमी को मार देते, फेंक देते या सजा के तौर पर हमेशा के लिए बंद रखते, उनका नुकसान पूरा नहीं हो सकता था। माजी में वो हमेशा नाकाम होते आए थे क्योंकि उनके फैसले गलत होते थे, लेकिन एक दूसरा रास्ता करम इलाही था। करम इलाही के साथ सीमी का निकाह किसी के वहमो गुमान में भी नहीं आ सकता था।
उन्होंने सिर्फ एक हाथ हिलाना था, उन्हें सीमी को सूली पर चढ़ाना था। फांसी एक साथ सबको लग जाती। एक लम्हे में फैसला हो गया था, सीमी और करम इलाही के निकाह का फैसला। दरवाजा खोलो शकीला, आज ताजवर तुमसे मिलने आई है। दरवाजा इतनी शिद्दत से खोला गया था कि ताजवर के कदम अपनी जगह से उखड़ गए। दरवाजे के पीछे शकीला थी, शकीला उनकी बहन, और सामने ताजवर थी, ताजवर उनकी बहन। ना जाने कितने सालों बाद, सदियों बाद ताजवर अपने कदमों चलकर उनके घर आई थी। आज पहली बार, सिर्फ पहली बार। वो जिन्होंने पलटकर शकीला को एक नजर भी नहीं देखा था, वो शकीला की शादी पर नहीं आई थी, वो कभी उनकी खुशियों में शरीक नहीं हुई थी। वो ताजवर आज उससे मिलने आई खड़ी थी उनके दरवाजे पर। वो ताजवर जिसे शकीला ने कई सालों पहले उनके घर के हवाले किया था, वो कहीं नहीं थी। उनमें ताजवर की झलक भी नजर नहीं आती थी। ये एक नई ताजवर थी जो एक उम्र काट कर लाडो बिला आखिर आज अपनी बिछड़ी बहन को देख रही थी, शक्लों से मिलने आई थी। शकीला हयात की आंखों से देखते ही देखते आंसू रवां हो गए। वो अपनी उम्र के बीते माहों साल भूल गई। वो आज जिस मुकाम पर खड़ी थी उन्हें कुछ याद नहीं रहा, सवाए अपने और अपनी बहन ताजवर के। दोनों कई लम्हे चुपचाप निगाहों से एक दूसरे को देखती रही, आंखें पड़ती रही, जिंदगी के इस सफर को एक दूसरे के चेहरे पर तलाशती रही जो नमकीन पानियों के हमरा कट गया था। अंदर अंदर नहीं आओगी? शकीला के हिलते लबों से आवाज नहीं बरामद हुई थी, मगर ताजवर उसके लबों की साख्त देखकर समझ गई थी। कितना फर्क था दोनों में, फर्क आ गया था। मगर क्या वाकई एक बहन दूसरी बहन की बात बगैर सुने समझ रही थी? एक बहन जानती थी कि आज उसे किसी का इंतजार करना है। आज कुछ आहटें सुनाई देती हैं तो फर्क कहाँ आया था? वक्त उम्रें ले पाया था उनसे, दूरियां पैदा कर पाया था। वक्त काम यही है, मगर हर चीज वक्त की दस्तरस में नहीं होती। वो उनसे हर चीज नहीं छीन पाता। उसे ये कबूल करना होगा। ताजवर ने पलकें झपकी, बहुत कुछ संभाला, खुद को संभाला, कदमों को हरकत दी, धीरे से अंदर आई। दरवाजा तुमने क्यों खोला? सोई नहीं अभी तक? और कोई नहीं? ताजवर उसकी तवक्का नहीं कर पा रही थी। रात के पहर क्या हर दस्तक पर दरवाजा वही खोलती है? सब है, मगर तुम्हारा दरवाजे पर इस्तकबाल मैं खुद करना चाहती थी। मुझे सबसे आगे मौजूद रहना चाहिए था ना ताजवर। ताजवर उनसे 2 कदम आगे खड़ी थी। शकीला भीगती आंखों से उसे तकती जा रही थी। उसे ना जाने क्या कुछ याद आ रहा था। अब्बा मियाँ ने अपनी वफा से पहले वादा किया था कि वो शकीला के घर जरूर आएंगे, मगर मौत ने उन्हें मोहलत नहीं दी थी। आज ताजवर पहली बार उनके घर आई थी। उन्हें लग रहा था जैसे अब्बा ने अपना वादा पूरा कर दिया हो। उनके वजूद से कितनी ही यादों का दम महकने लगा था। ताजवर हैरानी से शकीला की तरफ मुड़ी थी। तुम्हें किसने बताया कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ? शकीला की बात ने उन्हें सवाल करने पर मजबूर कर दिया। अब्बा ख्वाब में मिले थे, मुस्कुरा रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे कि ताजवर कैसी है। उन्होंने पहले कभी मुझसे ऐसा सवाल नहीं पूछा था। मुझे भला कैसे मालूम हो सकता है, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि ये सवाल बेमकसद नहीं हो सकता। शायद अब्बा मुझसे जवाब लेने आए और मेरे पास जवाब हो। शकीला मुस्कुरा रही थी, ताजवर को देख रही थी। उनका दिल पसीज गया, मगर नजरें झुक गई। वो कुछ बोलने के काबिल नहीं रही थी। मैं समझी थी तुम सो रही होगी। एक गहरी सांस उन्होंने फिजा के सपुर्द की। ये मौजू तब्दील करना इन दोनों के लिए बेहतर था। मैं नहीं सो पाई, मैं इंतजार कर रही थी तुम्हारा। रात के दूसरे पहर तुम ना आती तो तीसरे पहर तुम मुझे इसी तरह अपने घर के दरवाजे पर देख रही होती। शकीला की बात में एक गहराई थी। ताजवर फीका सा मुस्कुरा दी। तुम्हारे लिए शायद मैं दरवाजा ना खोलती, यकीनन तुम खोलती। तुम्हें लगा मैं सो रही होंगी, मुझे यकीन था तुम जाग रही हो। उसने मुझे मोहब्बत पाश लहजे में जवाब दिया और आगे बढ़कर ताजवर के शाने पर हाथ रखा। आओ मेरे साथ। वो आहिस्तगी से उसे अपने हाथ लेती हुई एक कमरे में दाखिल हो गई। यहाँ हीटर जल रहा था, पूरा कमरा खाली था और हिद्दत दे रहा था। ताजवर के दिल ने चुटकी ली। दस्तगीर भाई जाग रहे हैं, उन्होंने जवाब देते हुए हीटर का रुख ताजवर की तरफ मोड़ा था। ताजवर बेड के किनारे धीरे से टिक कर बैठी, गैर आरामदेह सी। फिक्र मत करो, वो हम दोनों के बीच नहीं आएंगे। शकीला ने उनकी झिझक को महसूस कर लिया था। घुटने पर हाथ रखा और खुद उनके सामने नीचे कालीन पर बैठने लगी। ये क्या कर रही हो?
ताजवर बेचैनी से उठने लगी तो शकीला ने दोनों हाथों से उन्हें बैठे रहने पर मजबूर किया। नहीं, मुझे बैठने दो, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, तुम्हें यहाँ बैठकर सुनते रहना चाहती हूँ। वो हसरत भरी निगाहों से ताजवर को देखती जा रही थी। लहजे में अजीब सी प्यास थी। पता नहीं मुझे यहाँ आना चाहिए था कि नहीं। ताजवर अपने हाथों को देखने लगी जैसे इस काम के सिवा और कुछ ना रह गया हो। शकीला मुस्कुरा दी। गैरों जैसी बात कर रही हो, मैं अजनबी तो नहीं हूँ। ये बात नहीं है, वक्त राब्ते तोड़ पाया है, रिश्ते तो नहीं। तुम गलत समझ रही हो। यही मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे गलत साबित कर दो। मेरा यहाँ आना ही ये साबित करने का कोई नहीं है। बेशक। शकीला धीमा सा मुस्कुरा दी। वो ताजवर को दीवाना वार देख रही थी। उसी लम्हे का ना जाने उन्हें कितने अरसे से इंतजार था। मैं जीती आंखों से तुम्हें इस घर में चलता फिरता देख रही हूँ। आज ये ख्वाब हकीकत हुआ तो मुझे यकीन नहीं आ रहा है। उनकी मुस्कुराहट में अफसुर्दगी घुल रही थी। ताजवर ने सर झटक कर बेशक। शकीला धीमा सा मुस्कुरा दी थी। वो ताजवर को दीवाना वार देख रही थी। उस लम्हे ना जाने उन्हें कितने अरसे से इंतजार रहा था। मैं जीती आंखों से तुम्हें इस घर में चलता फिरता देख रही हूँ। आज ये ख्वाब हकीकत हुआ तो मुझे यकीन नहीं आ रहा है। उनकी मुस्कुराहट में अफसुर्दगी घुल रही थी। ताजवर ने सर झटक कर खुद को ख्यालों से आजाद किया। हालांकि तुम्हें मेरे आने का यकीन था। ताजवर ने याद दिलाया। यकीन था, पर यकीन नहीं आ रहा था। अब कैसी हो तुम? ताजवर ने उनसे सवाल किया। तुम कैसी हो? शकीला ने सवाल लौटा दिया। तुम्हारे सामने हूँ। ताजवर ने कंधे उचकाए। बहुत खूबसूरत, शकीला ने बेसाख्ता कहा। फिर दोनों एक दूसरे को देखते हुए मध्यम सा हंस पड़ी। एक बेमैनी सी मुस्कुराहट, ना जाने क्या था इस मुस्कुराहट में और कैसी मैनी खेज खामोशी थी। हम कलामी के बावजूद कुछ तो था जो दोनों के दरमियान आ गया था। वही कुछ इन दोनों के बीच पुरतकल्लुफ से गुफ्तगू का सबब बन रहा था। तुम मेरा इंतजार कर रही थी शकीला? बहुत देर खामोश रहने के बाद ताजवर ने तस्दीक चाही थी। शकीला ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, तुम जानती थी कि मैं आऊंगी। तुम जानती होगी कि मैं क्यों आई हूँ। हाँ, शकीला ने एक लफ्जी एतराफ किया। फिर ताजवर के कुछ कहने से कबल वो बोल पड़ी थी। हुक्म करो ताजवर। ताजवर की पलकें कपकपाई थी। हाथों में राशा उतरा। आज उन्हें लगा वो अपनी सास की उम्र को पहुंच गई हैं और उनकी सास हमीदा जैसा फालज उन्हें लाख हो जाएगा। मुझ पर एक और आजमाइश उतरी है। मेरी बेटी की जिंदगी का फैसला मेरे सामने ऐसे हो गया है जैसे वो कोई इंसान नहीं, कोई बहुत हकीर सी बेजान चीज है। क्या किया है हाकम भाई ने अब? शकीला संजीदा लहजे में सवालिया निगाहों से उसे देखने लगी। उनके अंदाज में चेहरे पर कोई हैरत नहीं थी। उनके लिए ये नई बात नहीं हो सकती थी। उसने सीमी का निकाह अपने से दुगनी उम्र के बंदे से करने का फैसला सुनाया है। ताजवर ने झुके हुए सर के साथ बताया। वो जानती थी शकीला पुरसुकून नहीं रह पाएगी और शकीला के चेहरे का रंग एकदम तब्दील हो गया था। वो संजीदगी बरकरार ना रख पाई। मेरे अल्लाह, ये इंसान, ये अल्फाज अदा करते हुए उनकी गर्दन की नसें वाज़िया उबर आई थी। ताजवर का लिहाज कर गई थी शायद, या फिर वो उस इंसान पर कोई बात कहना पसंद नहीं करती थी। तुम्हें किसने बताया सीमी का? वो पूछने लगी। खिजर ने। तुमने बताया उसे? नहीं। शकीला ने उनकी बात समझकर नफी में सर हिलाया। मैं दुआ कर रही थी ये हमारी सीमी ना हो, मिसले बहिश्त की कोई और सीमी हो, लेकिन मेरा दिल कुछ गलत होने का इशारा दे रहा था। वैसे ही इशारे जैसे उस रात मुझे लग रहा था कि मुसीबत कहीं आस पास है। शकीला की आंखें फिर भर आई थी। ताजवर पुरानी बातें नहीं दोहराना चाहती थी। वो यहाँ इसलिए नहीं आई थी। खिजर को सीमी और अपने रिश्ते का मालूम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी खिजर ने सीमी के साथ अच्छा नहीं किया। शकीला, उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी सीमी से। नहीं ताजो, खिजर ऐसा नहीं है। शकीला ने बेसाख्ता उदासी से उनकी बात पर सफाई पेश की थी। जो कुछ भी हुआ इसमें दोनों का कसूर नहीं है। सीमी तो बेगुनाह है, खिजर से नादानी हुई, लेकिन इस वाक़े को गलत रंग देने वाले वो लोग हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रही। तुम जानती हो सीमी, पहले भी तुम्हारे घर आई थी। ताजवर की बात पर शकीला का दिल बेचैनी से लबरेज हो गया। क्या कह रही हो? सीमी मेरे घर आई थी? नहीं ताजो, मैं उसे पहचानने में कैसे गलती कर सकती हूँ? उनका दिल तड़प गया था। आंखों में एक हसरत जगमगाने लगी थी, माना कि मुझे उसकी सूरत भी याद नहीं। पता नहीं कितनी छोटी थी जब आखिरी बार देखा होगा, मगर मैं ऐसी भी अंधी नहीं कि अपनी भांजी को ना पहचान सकूं। वो तो खून है मेरा। शकीला जज्बाती हो रही थी। ताजवर को देखकर उनका दिल पहले ही पिघल रहा था।
ताजवर ने नजरें चुराई। और तुमसे नहीं मिली, वो सिर्फ तुम्हें एक नजर देखने आई थी। तुम्हारे साथ वाले घर किसी लड़की के बुलावे पर कोई शादी थी, छुप कर आई थी और अपनी ओढ़नी छोड़ गई थी। ताजवर शकीला को वर्ता हैरत में डाल रही थी। वो हैरानी से उन्हें देखे गई। खिजर ने उसे देख लिया था। मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं ताजवर, शकीला उलझ कर बोली। सिमी की चादर उसने उठा ली थी। खिजर ने? आज वही चादर वो हमारे घर दे कर गया है। ये कहकर कि सिमी का उसके साथ, ताजवर ने दुख से बात अधूरी छोड़ दी थी। शकीला को ये अधूरी बात बिच्छू का डंग लगी। वो झटके से उठ खड़ी हुई। नहीं ताजवर, तुम्हें गलत फहमी हुई है। खिजर ऐसा नहीं कर सकता। मेरा यकीन करो, वो तो खुद सिमी के लिए बहुत परेशान है। शकीला का दिल तेज तेज धड़कने लगा। खिजर, और ऐसी हरकत, क्या खिजर ने कोई और नादानी कर दी थी? शकीला, सिमी की वो चादर उसकी ताई को मिली है, वरना उसे कैसे पता था कि सिमी ने मुझे खुद बताया है। उसे खिजर ने देखा था। मगर ताजो, तुम सोचो, खिजर तो तुम्हारे घर का रास्ता तक नहीं जानता। उसके बचपन वाले हादसे के बाद मैंने कभी भूल कर भी तुम लोगों का जिक्र उसके सामने नहीं किया। शहर में ज्यादा वक्त रहने के सबब उसे तो खुद गांव में ज्यादा लोग नहीं जानते। शकीला को किसी हालत में यकीन नहीं आ रहा था। वो ये भी जानती थी कि ताजवर झूठ नहीं बोल सकती। तो फिर बीच में तीसरा इंसान कौन था? ये मैं नहीं जानती, लेकिन जिन लोगों ने शादी के लिए सिमी को दावत दी वो यकीनन जानती हैं। हाँ, वो लड़कियां। शकीला के जहन में निगार, महरीन वगैरह सी आई थी, मगर फिलहाल ये गैर जरूरी था। वो मैं देख लूंगी। तुम खिजर को नहीं जानती ताजो, इसलिए तुम्हारा बदगुमान होना जायज है। मुझे अपने बेटे से ज्यादा सिमी अजीज है, और मेरा यकीन करो, खिजर ऐसी ओछी हरकत कर ही नहीं सकता। जो होना था वो हो गया है शकीला। ताजवर की आंखों में धुंध फैल रही थी। मेरी सिमी रुल गई है। आज की रात के बाद मैं उसकी सूरत देखने को भी तरसूंगी। मैं हाकिम को नहीं रोक पाऊंगी। वो दो आंसू टूटकर उनकी हथेलियों पर गिरे और उन्होंने मुट्ठियां बंद कर ली कि शकीला देख न सके। शायद अपना भरम कायम रखना चाहती थी, शर्मिंदा नहीं देखना चाहती थी। हम तुम्हारे साथ हैं, तुम खुद को अकेला मत समझो। शकीला ने उनके शाने पर हाथ रखकर हल्का सा जोर दिया था। दुख तो इस बात का है कि हाकिम भाई अब भी नहीं बदले। मामला तुम्हारा हो या उनकी अपनी औलाद का, हमेशा गलत रुख पर सोचते हैं। मुझे उम्मीद थी वो अपनी बेटी पर इतनी सख्ती नहीं करेगा, मगर उसने एक बार फिर मेरी रूह को गहराइयों से झंझोड़ डाला है। शायद इसलिए कि सिमी मेरी बेटी है। एक आह सी उनके लबों से आजाद हुई थी। एक होक सी शकीला के दिल से निकली थी। मेरी बेटी बहुत मासूम है। उसे अपने घर के मर्दों की नाम नहाद गैरत का खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। पता नहीं वो अपनी जिंदगी पर से इस हादसे की छाप मिटा भी सकेगी या नहीं। ताजवर बुरे दिल के साथ बोल रही थी। शकीला उसके दर्द महसूस कर सकती थी। चुपचाप सुने गई। मेरी बेटी के पाक दामन पर दाग लग गया, उसके किरदार पर धब्बा पड़ गया। वो आंचल के पल्लू से आंखें साफ करने लगी। हम लोगों की जुबानें नहीं रोक सकते ताजवर। बातें बनाने वाले तो वो बातें भी करते हैं जिनका सिरे से कोई वजूद नहीं होता। यही बात तो मुझे खाए जा रही है। सिमी किसी तरह मुआशरे का सामना करेगी। वो एक ऐसी जिंदगी कैसे गुजारेगी जहां हर लम्हे उसे कचोके लगाए जाएं, और फिर वो करम इलाही। ताजवर अनदेखी आग में झुलस रही थी। उनका दिल मुट्ठी में भींचा जा रहा था। हम हाकिम भाई से बात करें? शकीला ने पूछा। वो तुम्हारी मानेंगे? ताजवर को बचकाना सी बात लगी। नहीं, शकीला पुर यकीन थी। तो ताजवर सर झटक कर दूसरी समत देखने लगी, जैसे कहती हूँ कि तुम फिर इसका फायदा। मेरी बात मानोगी ताजवर? शकीला का लहजा मान भरा था, सहारा देता हुआ। वो सवालिया नजरों से देखने लगी। तुम इज्जत बचाना चाहती हो या सिमी की जिंदगी? इज्जत रह क्या गई है शकीला? ताजवर ने रंज से कहा। इज्जत के साथ जिंदगी खूबसूरत होती है। इज्जत का वजूद कांच से बना होता है। जिंदगी ढीठ हो सकती है, मगर इज्जत बहुत नाजुक। जरा सी बेएहतियाती और ये चमकता नाजुक कांच चिकना चूर। उसे दोनों हाथों से भी समेटना चाहो तो सिर्फ हाथ लहू लहान होते हैं। उसे असली हालत में वापस नहीं लाया जा सकता। शायद ऐसा ही है। ताजवर ने उनकी बात पर संजीदगी से लब कुशाई की। उनकी आवाज मध्यम थी। इसलिए सिमी की जिंदगी बचाना जरूरी है ताजवर। मैं भी यही चाहती हूँ कि वो फैसला करके आई थी, बगैर किसी नतीजे पर पहुंचे वापस नहीं जाना चाहती थी। सिमी का निकाह हो रहा है ना? सिमी का निकाह होने दो। शकीला ने पुरसोच अंदाज में उन्हें मशवरा दिया। ताजवर की आंखें बेयकीनी से फैली। सिमी का निकाह ही अब सिमी की जिंदगी बचाएगा। शकीला ने ताजवर को हैरत वस्तों में धकेल दिया था। शकीला,
बहन के लिए ताजवर की आंखों में शौक ही शौक था। जिंदगी में एक बार मेहनत जरूर करनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि ये क्यों नहीं करनी चाहिए। मुस्तनसर हुसैन तारर। और ये कि बहुत दफा रंगीन मोहब्बत नहायत गैर रस्मी अंजाम से दो चार हो जाती है। फिर ये भी कि जिंदगी में स्याह बख्ती भी एक वजूद रखती है। कोरे कागज पर स्याही इसलिए दूर तक फैलती है कि जिंदगी के बाकी रंगों में गुम होकर हम उसे यकसर फरामोश कर देते हैं। फिर लम्हे भर की बेएहतियाती और सब काली सवा। एक स्याह दिन का आगाज, एक नए दिन का आगाज हो चुका था। शुमाइला बहादुर खान की खिड़कियों पर मटियाली सी धूप उजाला करने लगी तो धीरे से उसकी आंख खुल गई थी। चंद लम्हे वो गायब दिमागी और सोई सोई हालत में पड़ी रही। सर पर बोझ, आंखों में चुभन, फिर उसे कुछ महसूस हुआ। उसका बदन दुख रहा था, जोर जोर में खिंचाव। फिर उसे अपने हाथ पर ठंडक का एहसास हुआ। अचानक उसे समझ में आने लगा वो आधी रात तक वहीं बैठे बैठे न जाने कब सो गई थी, ठंडे फर्श पर। रात भर वो इसी फर्श पर पड़ी रही थी। उसे सर्दी महसूस नहीं हुई थी। वो रात भर बेचैन रही, मगर उसे कुछ याद नहीं रहा था कि उठकर वो अपने बिस्तर पर चली जाए। सीमी ने रात कैसे काटी होगी, उसे सर में तेज दर्द उठने लगा। हथेलियां फर्श पर टकाकर वो बमुश्किल सीधी हुई। पूरा वजूद मफलूज था। खिड़कियों के बावजूद रोशनी फैलने की नवीद दिखाई दे रही थी, मगर जिंदगी में एक हल्की सी किरण भी बाकी नहीं रही थी। सिमी, उसने दिल की गहराइयों से उसे आवाज दी थी। सिमी आज उसके दिल की नहीं सुन सकती थी, वो उस तक नहीं पहुंच सकती थी। शायद वो जिंदगी भर उससे नफरत करेगी। वो कभी तो शुमाइला की बात नहीं सुनेगी, वो शुमाइला की शक्ल नहीं देखेगी। शुमाइला उसे कभी अपनी हालत नहीं बयान कर सकेगी कि वो सीमी के बगैर कितनी अजियत में है। उसने सीमी और खिजर में से खिजर को नहीं चुना था। बात सीमी और उसकी मोहब्बत की रही ही नहीं थी। उसने तो अपने बाप के मान को चुना था, उनके यकीन को चुना था। और सीमी उसे कभी माफ नहीं करेगी, लेकिन शायद उसे कर देगी। वो बहुत बुलंद ज़रफ है। मोइन से उसकी शादी हो जाएगी, वो खुद को समझा लेगी मोइन को कि सीमी ऐसी नहीं है, सब ठीक हो सकता है। शुमाइला, बाहर शमरेज ने दस्तक दी थी। शुमाइला अपनी सोचों से बाहर निकली। उसे अभी सबका सामना करना था। नहायत अजियतनाक मरहला अभी मौजूद था। उठ चुकी हूँ शमरेज, उसकी मुरझाई सी आवाज दरवाजे पार शमरेज को भी महसूस हुई होगी। बाहर आ जाओ, सब इंतजार कर रहे हैं, उसे कहकर चला गया। शुमाइला ने खुद को समेटा और हिम्मत करके खुद को खड़ा होने के काबिल बनाया। सब सुबह की चाय पर उसके मुंतजिर थे और जब शुमाइला मुंह पर पानी के अच्छी तरह से छींटे मारने के बाद बाल समेटती उसके ख्याल में काबिल कबूल हुलिये में उसके सामने गई थी, तब भी सबकी एक खामोश सी नजर उसके चेहरे से पैवस्त होकर रह गई थी। मतवर्रम आंखें, उलझे बाल, बेआबो रंग शक्ल और एक रात में जैसे आंखों के नीचे हल्के से नजर आने लगे थे। सबको मुश्तरका सलाम करते हुए वो चुपके से कुर्सी पर बैठ गई थी। कैसी हो शुमाइला? पुप्पो ने मोहब्बत भरे लहजे में सवाल किया। उन्होंने कोशिश की कि उनके अंदर से गुज़श्ता रात का कुछ न झलके। ठीक पुप्पो, शुमाइला के लहजे में भी ठहराव था। मुस्कुराने की कोशिश। गुड गर्ल, रात सोई नहीं हो? नुदरत ने सवाल किया। सोई थी अम्मी, स्पॉट सा अंदाज। फिर इतनी सुस्त क्यों नजर आ रही हो? शुमाइला बेटे, उसकी खामोशी पर बहादुर साहिब ने उसे पुकारा था। बेटा, मैं जानता हूँ जो हुआ इसे फौरन भुला पाना आसान नहीं, लेकिन तुम्हें गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। जिंदगी के सफर में अगर कहीं कांटा आपके पाँव में चुभ जाए तो कसूर आपका नहीं, उस हाथ का होता है जो आपके रास्ते में वो कांटे फैलाता है। उन्होंने बहुत नरमी और आसानियत से समझाते हुए कहा था। उन्हें लगा वो शुमाइला के दुखते दिल पर शफकत का मरहम रख रहे हैं, जबकि शुमाइला के चेहरे पर तकलीफ उभरी थी। वो ये नहीं जानते थे कि ये कांटे फैलाने वाले हाथ खुद उनकी बेटी के थे। हमने सिमी को बहुत इज्जत और मोहब्बत दी, जबकि उसने तुम पर इल्जाम लगा दिया। गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं, भूल तो हमसे भी हुई। मैंने सारी उम्र उसके बाप से दोस्ती निभाई, वो धीरे धीरे से कह रहे थे। सब अपने ध्यान में खामोश सुन रहे थे। उसकी भाभी का मसला हो या फिर उसकी बीवी का, मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहा। उसके हाथों उसकी बीवी मरते मरते बची थी। उस वक्त भी मैंने सब संभाला। जिंदगी के किसी मोड़ पर मैंने आधी रात को भी उसे ना नहीं कहा, जबकि तुम्हारी अम्मा हमेशा मुझे टोकती थी। वो रंज भरे लहजे में कह रहे थे। आज जारहियत नहीं थी, तासुफ था, शिकवा था। आज उसने मेरे सामने तुम पर बात करते हुए एक लम्हे को भी नहीं सोचा कि तुम किस शख्स की बेटी हो। उसे कुछ भी याद नहीं आया।
कोई खलूस, कोई ताल्लुक, कोई एहसास नहीं। कितना आसान था उसके लिए सब कुछ, जबकि झूठ उसकी अपनी बेटी बोल रही थी। उसे देखते हुए खामोश हो गए। शुमाइला का सर झुकते झुकते नीचे तक चला गया था। उसे बहुत रोना आ रहा था। ला इल्मी भी किसी नेमत से कम नहीं होती। वो अपनी बेटी की कम ज़र्फी से आगाह नहीं थे कि दर हकीकत उसने इन सारे एहसानात का एक झटके में हर जाना वसूल कर लिया है। शुमाइला लब काटते हुए अज़ियत से आंसू पीने लगी। खैर, हर किसी का ज़र्फ, किसी को पानी पिया भी याद रहता है और कोई दूध पी कर भी भूल जाता है। उन्होंने कहावत दोहराई, दिल पर लेने की जरूरत नहीं बेटा, सब भूल जाओ। हम अब याद नहीं करेंगे। सुकून की सांस लो और हमारे साथ चाय पियो। बेगम, उन्होंने नुदरत बेगम को इशारा किया कि वो चाय की प्याली शुमाइला की तरफ बढ़ाएं। अहमर और शमरेज की नजरें शुमाइला की तरफ उठी थी। फिर दोनों चाय के सिप लेने लगे। शुमाइला को कप में चाय उंडेलने की आवाज सुनाई देने लगी। उसकी निगाहें चाय के सुनहरे रंग पर जम गई। वो चाय नहीं पीना चाहती थी। उसे अंदाजा था चाय जितनी भी खुश रंग हो, उसका जायका बहुत तलख होगा, घूंट घूंट इंतहाई करवा।